Hello, sir. Am I audible? Yeah, hi Anushka. Yes, you are. And can you see me? Yes, pretty much. Happy seeing Oh, you. And after some glitch, we are finally here and happy yeah, to have this very interesting conversation. true. And welcome everyone to the live stream. And sorry for the delay because of the technical glitch. But yeah, we have people here. All right. If people can actually let me know in the comments if you are able to see me, hear us properly, if you can react so that we can proceed ahead with the live stream. All right. Yes, Anushka, going all fine. I've checked it. All right, sir. So, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anushka Maan, and as I asked in my previous video, and so many of you responded yes to it. So, today I have my own mentor from when I was preparing for CAT 2023, Sudhanshu sir, with me. And I really wanted him here and share his insights with you because he was the one who helped me boost my scores in quants and DILR. जैसे लास्ट मोमेंट पे जो मुझे जिसने क्वांट्स में बचाया है, दिस इज द पर्सन. And I thought it will be really helpful for you guys as well to listen to his thoughts and to, you know, so that he can help you in your preparation. So, hello, Sudhanshu, sir. Welcome Thank to you. the live stream. Thank you Welcome to the so much, live stream. Anushka. It is absolutely a pleasure here. I must congratulate you for the good work that you have been doing, apart from your busy schedules at SP Jan. I know how life at a B school is, and उसके बाद भी time निकालना for YouTube community and the people at large. I think hats off. Great work that you are doing, and keep doing it. You are also doing it with a lot of passion, and it is absolutely great to see. So happy being here, and it's so good to see people who have sort of spent time with us in the past, our students doing so well. It gives a very different kind of a happiness. Thank you so much, sir. Thank you for appreciating me. But yes, it's just that I know the feeling of how it is to be on the other end preparing for the CAT examination. And there's so much anxiety, especially if you are starting on a short time span. Like I started 5 months prior to CAT. And I just wanted to share whatever insights and resources that I had with the people so that I can help them. Like Yeah, basically talking to my younger self from 2 years ago. right. So, sir, beginning the session, today is 19th July, and we are almost just 4 months away from CAT. Correct. And there will be so many people who would be thinking that whether or not it is the right time to start preparing for the CAT examination. कि एक साल से लोग prepare करते हैं. I'm just starting in 4 months, this and that. So if you could tell us if it's possible to crack CAT in 4 months, कोई testimonials और क्या करना Absolutely. चाहिए? Absolutely. So I think I would not say that it's the right time to start, obviously. स्टार्ट आपको थोड़ा पहले ही करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, बट आई वुडंट से दैट इट्स रॉन्ग टाइम, बिकॉज आप अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ से 4 मंथ्स दैट यू हैव, इफ यू बिलीव दैट यू कैन डेडिकेट टाइम, अगर आप समय दे सकते हैं एटलीस्ट फॉर एग्जांपल 3 घंटे 4 घंटे एट अ डेली लेवल कंसिस्टेंटली, तो आप कर सकते हैं. अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स से आधा घंटा 1 घंटा डालेंगे तो बहुत मुश्किल है. दैट्स समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस यू हैव डन द प्रिपरेशन बिफोर. तो दो चीजें कहूंगा. अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल ही फ्रेशर है, कभी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, उनके लिए यहां से अगर वो टाइम दे सकते हैं 4 घंटे 5 घंटे तो ठीक है. अदरवाइज जो लोग पहले कैट दे चुके हैं उनके लिए रिलेटिवली इजियर होगा यहां से भी स्टार्ट करना और अचीव कर लेना. बट हाँ, एब्सोल्युटली डुएबल है. आई थिंक आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो रिमेम्बर, मैक्सिमम जो प्रिपरेशन होती है जो लोग जैन फेब में भी चालू करते हैं वो तैयारी मेनली 4 महीने में ही करते हैं. और बेसिकली दैट इज हाउ वी हैव बिन, वेदर इट वाज स्कूल और कॉलेज, हम लास्ट में जाके पढ़ते थे. तो वो चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है और बी स्कूल में भी एप्लीकेबल होगा. अनुष्का, यू कैन वेरीफाई दैट, यू आर ऑलरेडी देयर, राइट?
टोटली सो टोटली। जो तैयारी होती है वो तो लास्ट में ही जाके तैयारी होती है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी किया है, सो आईड से फॉर बोथ द पीपल, ए पीपल हु हैवंट स्टार्टेड, एंड बी पीपल हु हैव स्टार्टेड, जस्ट टू बेसिकली गिविंग देम द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने कर लिया है स्टार्ट, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आपने काफी फेक कर लिया, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपने काफी फेक कर लिया अब, लेकिन जाग जाओ यहाँ से, सही तरीके से 4 महीने फाइट मारो। And the way to go, I would say, Anushka, let me ask you, how did you go about it? And then maybe I'll ask, add in a few pointers as well. 4 महीने क्या क्या किया था? क्या, what do you think worked out for you? So for me, I what I did was that I had 5 months at hand. I started in the beginning of July. तो नवंबर मंथ तो मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि नवंबर में एज सच कोई पढ़ाई होती नहीं है, इट्स फॉर मोस्टली रिविजन। सो जो मेरे पास 4 मंथ्स थे, द एंटायर जुलाई मंथ, आई मेड श्योर दैट आई कवर्ड ऑल द बेसिक्स दैट आई हैड, कि मतलब एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए हर कंसेप्ट के बारे में। दैट फॉर एग्जाम्पल फॉर क्वांट्स, द लास्ट, वैसे इट्स जस्ट द 10th क्लास लेवल सिलेबस, बट यू नीड टू ब्रश अप ऑन थिंग्स। तो एटलीस्ट एक बार सारे बेसिक्स जुलाई में कवर हो गए, एंड देन आई स्टार्टेड एडवांसिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। देन आई रिमेंबर सितंबर में देयर वर सर्टेन टॉपिक्स, जैसे अरिथमेटिक में टाइम वर्क था, या फिर मिक्सचर एलिगेशन, द टॉपिक्स दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विद। So I started with the boot camp sessions, or started looking for resources, so that my concept clarity improved, because I was struggling with those concepts. And that's when your boot camps came handy. Correct. That, yeah. So I made sure that in September, October, जो मेरी strengths और weaknesses थी, I had identified already. I knew मुझसे ये वाली चीज़ नहीं होगी, तो इसको हम थोड़ा एवरेज लेवल प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन जिस चीज़ को मैं अच्छे से कर सकती हूँ, टू टेक दैट टू द 100th level. And that's how I proceeded with my Perfect. preparation strategy. Perfect. So, Anushka, what I would suggest for everybody who's going to start now, I think we have nearly, let's say, 135 days left. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए. Let's say, for example, 70 days for completing the syllabus and another 65 days for revision. तो पहले 70 दिन में अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, योर प्रायोरिटी शुड बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस एंड हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन फॉर क्वांट्स, डीएलआर एंड वीआरसी. ओके, so that is number one. And second part, your mocks and sectional test should go on. Okay, so mocks and sectional test आपका चलता रहना चाहिए. उसका आप एनालिसिस भी करिए, उसको आप ब्रेक डाउन भी करिए, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है. बट ऑब्वियसली फर्स्ट 70 days when you are preparing, do not worry too much about your scores, because if you start worrying too much about your scores, then you start moving into a very different zone altogether. One mistake that I see a lot of people do is start focusing only on mocks. See, remember, for a person with a disease, mock test is like a blood test. A blood test is not going to cure you. A blood test is only going to give you a diagnosis, which is then to be used to treat you. So basically तुझे पहले अपनी तैयारी करनी है, 70 दिन अपनी तैयारी करो, फिर 65 डेज में मॉक्स एंड सेक्शनल शुड बी प्रायोरिटी. अभी प्रिपरेशन शुड बी प्रायोरिटी एंड सेकंड फिडल शुड बी मॉक्स एंड सेक्शनल्स. अगले 65 डेज में मॉक्स एंड सेक्शनल शुड बी प्रायोरिटी एंड रिवीजन शुड बी द सेकंड फिडल. इस तरीके से दो दो एलिमेंट्स आपके हर एक 70 डेज में और 65 डेज में हो जाएंगे. पहले 70 डेज में तैयारी कैसे करनी है, आप अपना वीक का स्केड्यूल बनाओ. अगर आप 70 डेज के हिसाब से सोचते हो, बहुत सिंपल देखो, 70 डेज अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से डिवाइड करें क्वांट्स के अंदर आपके पास 5 टॉपिक्स है: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम. ठीक है, बहुत सिंपल हिसाब करो, 70 दिन में उसको उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दो जिस प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद उतना उतना टाइम तुम्हें देना है. उसके मान लो फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से कि 30% क्वेश्चन तुम्हारे अरिथमेटिक से आते हैं. ठीक है, तो 30% क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक से आता है या 35% क्वेश्चन अरिथमेटिक से आता है, तो आप उतना टाइम लेट्स से 70 में से अगर आप 30% कैलकुलेट करोगे या 35 कैलकुलेट करोगे, तो लगभग लगभग 25 दिन आपका अरिथमेटिक आ जाता है. अब 25 दिन अरिथमेटिक आ गया, अब 25 दिन को फिर डिवाइड कर दो टॉपिक्स वाइज. अब टॉपिक्स क्या क्या है तुम्हारे पास परसेंटेज एवरेजेस रेशियो, उसके अलावा तुम्हारा मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. 6 टॉपिक्स हो गए. 6 टॉपिक्स हुए और टोटल तुम्हारे पास दिन हो गए 25 दिन. तो मोटा मोटा हर एक टॉपिक के लिए तेरे पास 3 से 4 दिन बनते हैं. ठीक है, तो वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट होना ही होना चाहिए. एंड बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट एंड एटलीस्ट फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस
इफ नॉट सेकंड लेवल क्वेश्चंस। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप सेकंड लेवल नहीं भी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट वाले 65 डेज में सेकंड लेवल करेंगे, अगर आप वीक हैं मैथ्स के अंदर तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ में फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस करिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से करिए। ठीक है, आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करिए या फिर कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए उससे करिए, बट लेवल 1 एंड कॉन्सेप्ट्स आप कंप्लीट करते जाइए। ऐसे टाइम डिवाइड करिए, और टाइम ड्रिवन से ज्यादा टास्क ड्रिवन प्रिपरेशन होना चाहिए कि मेरे को 24 दिन में 25 दिन में अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करना है, तो मेरे को 4 दिन में टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड डिस्टेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई वुड बेसिकली डिवाइडेड कि मैं 2 दिन उसमें से कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से करूंगा, और 2 दिन उसमें उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से क्वेश्चंस करूंगा एटलीस्ट लेवल 1 वाले। तो ये हो गया तुम्हारा क्वांट्स का। सिमिलरली डीआईएलआर के अंदर क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल 70 डेज में डीआईएलआर पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डीआईएलआर के सारे इंपॉर्टेंट वैरायटीज आइडेंटिफाई करें। आपके पास अगर आइडेंटिफाई करने का टाइम नहीं है तो आई हैव दैट लिस्ट, वो लिस्ट अनुष्का मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चैनल पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली वो लिस्ट तुम्हारे पास रेडी है। सबसे पहले क्या करो, सारे के सारे पीवाईक्यूज उठा लो। मान लो तेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है डीआईएलआर का, ठीक है, एकदम तुम नल्ला है, जीरो, कुछ नहीं पता, तुमको कोई आइडिया नहीं है। सारे के सारे पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज को मैप कर दो हर एक टाइप के साथ में। ठीक है, हर एक टाइप के साथ में मैप कर दिया कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन है, ये स्टैक्ड बार ग्राफ का क्वेश्चन है, ये डिविएशन बार ग्राफ का क्वेश्चन है, कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल उसको एक बार खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई कर लो, नहीं सॉल्व हो रहा है सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन तुमको कहीं ना कहीं पूरा इंटरनेट भरा भरा हुआ है, तुमको सोल्यूशन पीवाईक्यू मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज भी कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जो अपना चैनल है एमबीए लिटमस, तो आप उस पर भी देख सकते हो। अगर वीडियो सोल्यूशन देखना है तो उस पर देख लो, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना है तो कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका सबसे पहले सारे के सारे जो वैरायटी है उसमें कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन पहले तो मैप हो जाएगा तुम्हारा, और तुमको पता चल जाएगा कौन से वैरायटीज हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स है, जो भी इंस्टीट्यूट का रिसोर्स है या जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स है, उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा अरेंजमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अरेंजमेंट का ये वाला क्वेश्चन मैं इस वाले से उठा के सॉल्व कर लिया। और फिर अपना बकेट्स बनाते जाओ और बकेट्स में डालते जाओ। 70 दिन में कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना वैरायटी है सर, हर हर वैरायटी के अंदर तुम्हारा कम से कम 5 से 6 सेट तुम्हारा होना चाहिए। कुल मिला के लगभग लगभग 35-40 वैरायटीज हैं तुम्हारे कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 40 के अंदर तुम 6 6 क्वेश्चन कर दिया तो 250 सेट हो गया। दैट इज इफेक्टिवली क्वालिटी प्रिपरेशन फॉर डीआईआर। तो हर एक वैरायटी करना, ऐसा मत करना कि 500 सेट कर लिया उसमें से 400 तुमने अरेंजमेंट ही करे हैं। तो फिर क्या होगा, सरप्राइज अटैक होगा एग्जाम के अंदर कि एक ऐसा सेट देख लिया, पूरा पैनिक अटैक हो गया, उसका जो आता था वो भी सॉल्व नहीं हुआ। तो वैरायटी बिल्ड करना जरूरी है। वीआरसी के अंदर आइट से बहुत सिंपल, आपका डेली रीडिंग का एक्सरसाइज रखो। बेसिकली 2 रीडिंग रखो, समराइज करो। एऑन ऐसे पढ़ रहे हो तो एऑन एऑन ऐसे 4000 पूरे वर्ड्स मत पढ़ो। ठीक है, आपके पास कैट में आरसी आते हैं 500-600 वर्ड्स, आप मैक्स 1000 वर्ड्स पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर। कॉम्प्रिहेंशन इशू अगर फेस कर रहे हो तो बीच से पढ़ो, स्टार्ट से मत पढ़ो। डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। आप बीच से पढ़ना जब शुरू करोगे ना तो रियलाइज होगा कि कंप्रिहेंशन और डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर आप अपने आप को रोज चैलेंज कर रहे हो वीआरसी में, रोज चैलेंज कर रहे हो डीआईएलआर में, दोनों इंप्रूव हो जाएगा। डीआईएलआर में अगर आप चैलेंज नहीं ले रहे हो या फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हो तो डीआईएलआर इंप्रूव नहीं होगा। आप जहां पे हो आप वहीं पे रहोगे। तो वीआरसी में भी ऐसा करो कि आप फॉर एग्जांपल बीच से पढ़ना चालू करो, फिलोसफी पढ़ना चालू करो, और एक एक वैरायटी रखो। अगेन अनुष्का, आई हैव अ लिस्ट ऑफ गुड रीड्स फॉर वीआरसी एंड जॉनर्स ऑल्सो। कौन से जॉनर्स के आरसी कैट में आते हैं, वो जॉनर्स आइडेंटिफाइड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दीजिए, तो बेसिकली लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उन जॉनर्स के अंदर पढ़ाई करिए, डेली आप उसके अंदर रीडिंग करिए। और उसके अलावा दिन का कम से कम 2 आरसी आपको करना ही है। अगर आपका वीआरसी वीक है तो 4 आरसी आपके होने चाहिए। उसके सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ लो, वीआरसी पढ़ने के लिए 4 आरसी आपको डेली लगाना है। क्लियर? सो दैट इज हाउ योर प्रिपरेशन इन द लास्ट 70 डेज। फाइट मारो, 3 4 5 घंटे अगर तुम कर सकता है तो डेफिनेटली गेम इज ऑन। आई एम होपिंग दैट सम्स इट अप अनुष्का। आई थिंक दैट वॉज ब्रिलियंट सर। लाइक द मेन थिंग इज दैट ओनली कि मतलब जितना भी टाइम है अगर उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करके उसके बाद उन पीसेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ वीक वाइज मंथ वाइज, तभी यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर इन कैट 2025। ऐसे ऊपर ऊपर से तो इट वोंट बी नहीं नहीं, एब्सोल्युटली हैपनिंग। एब्सोल्युटली। और बस स्ट्रैटेजी मत बनाते रहना। मेरा एक दोस्त था,
जो कि फॉर एग्जाम्पल हर एक दिन पढ़ाई करने से पहले स्ट्रेटजी बनाता था कि आज मैं क्या क्या करूंगा। तो पूरे दिन लिस्ट बनाता था, 2 घंटा लिस्ट बनाने में लगता था उसको, क्या क्या करने वाला है। उसके बाद ना 2 घंटे लिस्ट बनाने के बाद ना वो लिस्ट के एकदम ऊपर में एक लिख देता था कि पहले मैं सो जाऊंगा। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में उसके बाद वो 2 घंटे लिस्ट बना के फिर सो जाता था। मैक्सिमम लोग फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग या मोटिवेशन वीडियोस इसलिए देखते हैं ताकि आराम से सो सके। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, बोल रहा है ना सामने वाला, एक्सपर्ट आदमी है, बोल रहा है तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सो जाता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू नॉट नीड। तो आपको मोटिवेशन वीडियोस या इन चीजों की कम जरूरत है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहो। आप भी स्कूल में जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप अनुष्का से पूछ सकते हैं, मे बी शी वुड नॉट टेल यू राइट नाउ। बट इफ यू गो टू एसपी जैन एंड आस्क हर, शी विल टेल यू कि भाई खतरनाक फ्रस्ट्रेशन है, वर्कलोड है, बहुत सारी चीजें हैं, केस कंपटीशन, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन जम के होगा, और जब आप एक बार बी स्कूल के बाद कॉर्पोरेट में चले जाओगे, व्हेन यू आर इनटू द टॉप मैनेजमेंट। So when I was with Reliance, I was actually heading up a couple of brands there. जम के फ्रस्ट्रेशन होता है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेटेड रहो। ठीक है, इट्स गुड टू रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। ऐसा नहीं कथा सुन के मोटिवेशन का एकदम चिल हो गया, वैसा नहीं करना है। फ्रस्ट्रेटेड रहिए, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड इट ऑल्सो इज गोइंग टू पुश यू फॉरवर्ड। ठीक है, जस्ट दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ, बस वो मत करना। थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स्ड रहो। ठीक है, हम सब लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, लेकिन देख देख के लग रहा है आपको, नहीं लग रहा होगा, है ना अनुष्का? थोड़ा बहुत स्ट्रेस सर. हाँ थोड़ा I have बहुत। a A4 size list of to-do list for today. नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहना पड़ता है थोड़ा बहुत। True sir. बट डेफिनेटली ऐसे इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू. थोड़ा सा ऐसे दिमाग में टेंशन रहेगा, जस्ट टू बी एंशियस. या एंड दैट यू शुड बी फॉलोइंग द सेम टाइम टेबल एवरी सिंगल डे. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि आप भी जैसे बताते थे दैट लॉट्स ऑफ पीपल दे ब्रेक डाउन इन सितंबर अक्टूबर, दे या स्टॉप प्रिपेयरिंग, गिव अप कर करेक्ट, देते हैं. करेक्ट। सो इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो नहीं हो पाएगा. दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो लोग जो स्टार्ट करने में बहुत लेट कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ करेंगे करेंगे, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। दूसरी जनता जो पहले स्टार्ट करती है उसका बर्नआउट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से अगस्त सितंबर आते आते ना मॉक्स में स्कोर्स नहीं बनते हैं, वो छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैड यू नो a girl called Anushka Arora who was preparing with us last year. ठीक है, शी वॉज अर्लियर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। उसके केस में ये था कि शी हैड स्कोर्ड जस्ट अ 57 परसेंटाइल। ठीक है, इन द लास्ट कैट अटेम्प्ट। एंड मॉक में स्कोर्स भी काफी डामाडोल थे। बट आई आई रियली अप्रिशिएट पीपल जिनका थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है, कि नहीं गिव अप नहीं करेंगे भाई, लास्ट तक फाइट मारेंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। और एंड ऑफ द डे शी स्कोर्ड वेल, शी स्कोर्ड नियरली अ 98, वेंट टू एमडीआई गुड़गांव, डूइंग वेल देयर। तो पॉइंट इज कि आप भी कर सकते हो, मॉक्स तुम्हारे खराब होंगे। अनुष्का, डिड यू हैव बैड मॉक स्कोर्स और नॉट? I had one really bad mock 10 दिन before CAT. So ओके। then that that standard case wherein they ask you that you might have bad mocks near CAT exam but stay strong. So all those motivational videos came into play in my life in reality. So yeah, but then you have to sail through it. It's यस, fine to have bad mocks. एंड टॉक टू, आई वुड से टॉक टू द राइट पीपल। कई कई बार ना थोड़ी झूठी तारीफ काम करती है, और सच्चा फीडबैक काम नहीं करता। ठीक है, सो आइड से कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन मिल रहा है किसी सोर्स से, मत बात करो। हो सकता है कि सच्चाई ही हो। ठीक है, मतलब यार उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम सब लोग फॉर एग्जांपल वी बिलीव इन गॉड, राइट? हु हैज सीन? नोबडी। सो माय पॉइंट इज दैट वी स्टिल बिलीव इट, राइट? सो यू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू इट। सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, सिर्फ आईआईटीज कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा फिर आप कर ही नहीं पाओगे। सो बिलीव करो। आप उन लोगों से बात करो जो थोड़ा सा फील गुड फैक्टर देते हैं, जो थोड़ा सा आपको अच्छा फील कराएं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट इज ट्रू और नॉट। सच्ची बात तो यही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमको दोस्तों के साथ इसीलिए अच्छा लगता है बिकॉज दोस्त कई बार हमें ऐसे रैंडमली बोल देते हैं कि अरे अरे तू कर लेगा, हो जाएगा तेरे से। पर अगर आपको कोई कॉन्स्टेंटली बोल रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, उनसे दूर रहिए। हो सकता है वो सच ही बोल रहा हो, और वो सच हो जाएगा अगर आप सुनते रहेंगे तो मत सुनो।
अपनी सुनो, एक दो ऐसे लोग पकड़ो जो झूठी तारीफ करते हैं। ठीक है, ऐसे झूठी झूठी तारीफों में काम हो जाता है कई बार। दैट्स सो ट्रू। बट इसी के साथ लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि ओके। बहुत सारे लोग पूछते हैं, लाइक ये ऐसे सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑल दैट, वो सब ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल जो कि बिना कोचिंग के अपने आप से प्रेप कर रहे हैं? उस टाइम पे तो सेल्फ मोटिवेशन, गाइडेंस, एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ goes for a toss if you are not यस। following the right strategy. So यस। if you could tell us ki is CAT possible without coaching given the limited amount of time that is left, and if yes तो कौन कौन से resources हम रेफर कर सकते हैं? सो अनुष्का, सेल्फ प्रिपरेशन एब्सोल्युटली इज पॉसिबल, बट सेल्फ प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आई ऑल्सो डिड इट, बट मुझे समय लगा। क्योंकि आपको पहले पता नहीं होता कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते नहीं है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है। ठीक है, आपके लिए फॉर एग्जांपल हो सकता है जो सबसे सही डीआईएलआर सोर्स हो, मेरे लिए कुछ अलग है, तुम्हारे लिए कुछ अलग है। बिकॉज तुम अलग तरीके से समझते हो। ठीक है, तुम्हें अलग तरीके से सिखाया गया बचपन से, मुझे अलग तरीके से सिखाया गया। एक तो बहुत सारा समय लगता है रिसोर्सेस को फिल्टर आउट करने में और अपने लिए जो रेलेवेंट रिसोर्सेस है वो बनाने के लिए। तो डेफिनेटली डुएबल तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं आई वुड रिमेम्बर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड ऑन देयर ओन, I'd say एक और important element is, for example, in my case, I was lucky to have mentorship from my cousin brother who is from IIFT। ठीक है, अब मुझे बहुत, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, कई बार लोग बोलते हैं कि सर आपने सेल्फ प्रेप किया, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बोलूं यस कि नो बोलूं। ठीक है, बिकॉज आई वॉज यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस, ऑल द हेल्प दैट आई कुड गेट। ठीक है, बिकॉज मैं उसका दिमाग खा जाता था। ठीक है, कि भाई मेरे को बता कि कैसे करना है, इस हफ्ते का क्या प्लान होना चाहिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, वीआरसी मेरे से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करूं, कितना रीडिंग करूं, कैसे रीडिंग करूं। सो आई वॉज टेकिंग ऑल दैट हेल्प, प्लस आई हैड अ वेरी गुड ग्रुप। तो जितने भी लोग फॉर एग्जाम्पल सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि अपना एक रेलेवेंट ग्रुप जरूर बनाना, 3 4 लोगों का, और सीरियस और सिंसियर लोगों का। ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 लोगों का ग्रुप बना के पबजी खेल रहे हैं, वो भी बॉट मार रहे हैं, क्या फायदा। तो अच्छे लोगों के साथ में ग्रुप बना लो, 3 4 लोगों का। एक ऐसा पकड़ो जो डीआईएलआर में थोड़ा ठीक है, एक जो थोड़ा क्वांट वाला है, इंजीनियर। ठीक है, एक वीआरसी पकड़ो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई। ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के लोग पकड़ो और अपना एक ग्रुप बनाओ, और उसके साथ में अपना डेली प्लान बना के चलो। देखो, एक बहुत सिंपल चीज है, इफेक्टिवली कोई भी कोचिंग प्रोग्राम तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है? कोई भी कोचिंग प्रोग्राम तुम्हें एक रिदम प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हारे लाइफ में रिदम है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, पहला नंबर। और क्या प्रोवाइड करता है? सेकंड, कुछ प्रोग्राम्स जो है वो मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे केस में ये कि स्टूडेंट्स के साथ हम डायरेक्टली भी इंटरेक्ट करते हैं। आपके पास अगर कोई ऑलरेडी एक अच्छा मेंटोर है तो बढ़िया है भाई। तो तुम्हें बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। एक, तुमको एक अच्छा ग्रुप चाहिए। दूसरा, तुमको एक अच्छा मेंटोर चाहिए। एंड तीसरा, तुमको सॉर्टेड रिसोर्सेज चाहिए। ये 3 चीजें सॉर्ट आउट करने में समय लगता है। ये 3 चीजें तुम चाहे सेल्फ में करो या तुम किसी प्रोग्राम के साथ करो, तुमको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ में ये 3 चीजें सॉर्ट आउट करने में समय लग जाती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये 3 चीजें तुमने सेल्फ में सॉर्ट आउट कर ली तो तुम सेल्फ भी कर सकते True, sir. Like adding on to your point, like from my perspective, when I started preparing for CAT, so मेरे पास कोई guidance नहीं था, and I don't come from a business family, और हो। मेरे करेक्ट। आसपास nobody had done MBA. So करेक्ट। I knew I needed a coaching resource क्योंकि मेरे पास करेक्ट। guidance नहीं था, because करेक्ट। इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा. करेक्ट। So analyze your situation, analyze if what kind of guidance you need, and then see if you need a coaching or something. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सी, आई थिंक वन थिंग दैट अ प्रोग्राम डज इज कि वो तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा रिदम ले आता है, और तुम्हें एक, फॉर एग्जांपल लेट्स से, एक सॉर्टेड एटमॉस्फेयर देता है जिसके अंदर तुम, फॉर एग्जांपल पीयर लर्निंग, तुम्हारा प्रॉपर लर्निंग, तुम्हें रिसोर्स के लिए भागना नहीं है, तुम्हारा डाउट्स बराबर सॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो द वे वी ऑपरेट एट एमबीए लिटमस, कि हम हर संडे सबके डाउट्स भी सॉल्व करते रहते हैं। तो जो भी डाउट्स हमारे पास आते हैं वो सारे हम डाउट सॉल्व करते हैं। करेक्ट। तो वो डाउट सॉल्विंग मिल जाता है जो आपको अदरवाइज नहीं मिलता। करेक्ट। सो आई थिंक ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। आई वुड से कि अपने आप को
पहले अच्छे से समझ लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुझे लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, एक चीज मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, 2 साल 3 साल में करने से बहुत अच्छा है कि 1 साल में करना। अगर आप 1 साल में कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा, वो टाइम जो आगे जाके मनी होगा। सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 साल पहले बी स्कूल में जाते हो, ठीक है, फ्रॉम द बी स्कूल्स, द लाइक्स ऑफ अनुष्का गो टू, आप वहां से आराम से 30 लैक्स टाइप लेके निकलते हो। 1 साल लेट से जाते हो तो 30 लाख, और 30 लाख में 30% टैक्स निकाल दो, 9 तो 21 लाख का नुकसान तो वैसे ही हो गया। सिंपल बात है ना। तो 1 साल लेट से गए तो तुम्हारा 21 लाख गया ना। तो इफेक्टिवली यू नो एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, एंड देन टेक अप अ प्रोग्राम और नॉट टेक अ प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। True, sir, definitely. So, sir, a lot of things we are talking about the CAT preparation, ऐसे करना है वैसे करना है. But then there are a lot of people who there's this question going around that MBA करना relevant है भी या नहीं? Like, what does B school even teach you, which is so special? Is it worth the amount that you spend on it? And I know that a lot of people, including me, when you join a B school, the main motivation is paisa. But करेक्ट। then when you enter the B school, your priorities just change completely. So, करेक्ट। like, before I share my perspective, I would want to know that is MBA still relevant abhi ke time mein? And like, what is the real ROI apart from the fancy packages that people tell? Okay, so I think Anushka, there are the answer is MBA still relevant? Again, I would say it also depends on the perspective. ठीक है? If I talk about financial, independence, yes, it is. ठीक है? आप अगर फॉर एग्जांपल देखोगे ना हमारे इंडियन मार्केट में, तो ग्रेजुएशन के बाद नो कंपनी इज विलिंग टू पे 25,000 रुपीज ऑल्सो टू अ पर्सन। True, ठीक true. है? दैट सेम पर्सन फाइट मारता है, कैट क्लियर करता है, अच्छे भी स्कूल में जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, 25 लाख एलपीए पे हायर होता है। ठीक है? जो पहले 25,000 पे भी हायर नहीं हो रहा था। करेक्ट? इतना ज्यादा चेंज इज समथिंग विच द बी स्कूल मस्ट बी डूइंग, is what my earlier understanding was, and with over a period of time I have understood कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या होता है ऐसा बी स्कूल के अंदर जाके। आई हैव ऑल्सो गॉन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एबीजी साइड व्हेन आई वाज वर्किंग विद आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, एंड देन आई सॉ फ्रॉम द रिक्रूटर साइड ऑल्सो कि क्या देखते हैं, व्हाट इज इट दैट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग पीपल, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका communication and leadership. Okay, the ability to communicate improves drastically। ठीक है, मतलब बहुत ही इंट्रोवर्टेड लोग भी काफी अमेजिंग कम्युनिकेटर्स बन के निकलते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको बहुत सिंपल चीज है, 3 मेजर चीजें बी स्कूल में सिखाते हैं। एक आपका है कम्युनिकेशन, ठीक है, सेकंड आपका है पीपल स्किल्स, और तीसरा है नंबर स्किल्स। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा हर एक चीज में आपको दिखेगा। आप केस स्टडीज में देखो, केस स्टडीज में ह्यूमन एंगल होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट शुड द सीईओ डू इन अ सिनेरियो लाइक दिस, राइट, व्हाट शुड द फैक्ट्री मैनेजर डू इन अ सिनेरियो लाइक दिस। तो केस बेस्ड पेडागॉगी जो आपका बी स्कूल में फॉलो करते हैं, इसका प्राइमरी फोकस 3 एलिमेंट्स है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रंचिंग नंबर्स, और इसीलिए पहले डीआईएलआर कराते हैं, क्वांट्स कराते हैं। ठीक है। सेकंड इज कम्युनिकेशन, उसी के लिए पहले वीएआरसी कराते हैं, और वीएआरसी कराते हैं, इंग्लिश नहीं कराते। वीएआरसी इज वर्बल एबिलिटी विच इज नॉट इंग्लिश। करेक्ट। To be a good communicator, you do not need to have a very fluent English, British English, American English. You can be a good communicator anyways. एंड फाइनली थर्ड एलिमेंट इज गेटिंग टू नो पीपल। अब ये जो जर्नी है, जब आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसके अंदर भी आप अपने पीपल स्किल्स पे काम करें, जब आप बी स्कूल के अंदर जाते हैं आपको ढेर सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं। क्यों? इंडिविजुअल भी दे सकते थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि आपका पीपल डायनामिक्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज याद रख लो, आप बी स्कूल के बाद कॉर्पोरेट में जाओगे, आप ये सोचो कि मैं एकदम तोड़ परफॉर्मर हूं, मेरा प्रमोशन होगा, नहीं होगा। until you are a good people's person, you know how to manage your team, you know how to manage people, you know how to effectively keep everything, all the stakeholders happy। ठीक है, बी इट कस्टमर्स, बी इट इंटरनल टीम मेंबर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, और ये एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल है। ठीक है, इसको इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 3 चीजों से आप दुनिया जीत सकते हो, अगर आप ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हो।
तो वो तीन चीजें आपको सिखाते हैं, आपका वैल्यू बढ़ जाता है, फिर आप 25 लाख 30 लाख पे हायर हो जाते हो। एब्सोल्युटली रेलिवेंट है। बट एक चीज जो मैं वॉइस आउट करना चाहूंगा, विच इज राइट नाउ इमर्जिंग एज अ कंसर्न, अनुष्का, आई डोंट know whether you'd know, I'm sure you would know this because you are very active in the MBA circuit. आई एम कैलकटा जो पहले 25 साल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करता था फॉर इट्स एलमनाई, उसको कम करके 15 साल पे ले आया। है ना थोड़ा सा शॉकिंग, और इसका रीजन काफी शॉकिंग है। मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए अगर आपको पता है कि एक्चुअली क्या रीजन है। उसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि पीपल वर एक्चुअली डाइंग बिफोर दे कुड अटेंड देयर 25th एनिवर्सरी ऑफ कॉलेज, मतलब 25 साल कॉलेज के कंप्लीट होने से पहले ही पीपल वुड डाई। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। तो अगर इफ यू वुड आस्क मी इफ if it is a good ROI from a health standpoint, the answer is no, it is not, and that is a concern. A lot of people hearing us from the forum, I'd want to highlight that if you are getting into a B school, the corporate journey, highly paying journey, investment banks in crores, investment banks pay you in crores, and basically even before you complete 10 years आप 1.5 2 crores पे होते हो, और ये रियलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं द हेल्थ पार्ट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, सो आई थिंक हेल्थ आरओआई इज बैड, बट ओवरऑल फाइनेंशियल आरओआई तो फैंटास्टिक है, कोई डाउट ही नहीं है। एंड आई डू नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स एक्चुअली कम्स इवन क्लोज। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिग्री कर लो इंडिया के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के आसपास भी नहीं जा सकते, ना आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग के आसपास जा सकते हो। आप जो करना है करो, सीए करो, सीएमएस करो, जो करना है करो, आसपास भी कोई नहीं है। करेक्ट, सो आई थिंक दैट इज फिनेंशियली तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली रेलिवेंट है ये। Definitely, sir. And apart from this, one more thing that I personally learned, which was I was a fresher when I joined MBA. तो मेरे पास कोई corporate experience नहीं था, and I just came directly from undergrad. But one thing that MBA has shaped me is इतना ज़्यादा मतलब pressure and all that, giving you so many tight deadlines, करेक्ट। and you have to give quality, high quality work, चाहे कितनी भी tight deadlines हो, that अगर लाइफ में whatever sector that I'm delving into, I know that I'll be able to handle it properly. And maybe that's why we see that MBA grads from the top B schools, they just shine everywhere they go. मतलब they करेक्ट। even enter the public services, and then there also they are doing so well. Absolutely. Absolutely. I think Dr. Himanshu Rai, who is the current director of IIM Indore, he used to be our prof at IIM Lucknow, used to teach us a subject called strategic business negotiation. And one thing which he used to, iterate again and again was the fact that it's not about managing others. Okay. It's about managing yourself. So if you are somebody who learns to manage yourself, and again, CAT preparation is the first step. How do you manage yourself during CAT preparation? फिर उसका next step होता है getting into the B school and basically then managing yourself. Effectively, somebody who has control over their emotions, time, feelings, deadlines, etc., etc., becomes capable to manage others. So first you have to manage yourself, learn to manage yourself, and then manage others. Definitely, sir, है ना, definitely. उस हमारे बचपन में वो प्रेयर भी होता था ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। वो खुद की जय करेगा मतलब खुद को मैनेज करें प्रॉपरली पहले। आई थिंक दैट इज द एसेंस। Definitely, sir. Truly, truly. And that's what MBA teaches you essentially, यस। to become very disciplined and focused in your life. यस। And which also makes me want to ask you that since you are from IIM Lucknow, and it is called IIM Hell for यस। some reason, यस। like in the MBA circle, if you talk about it. So, आप बताइए, like, why is it called so, and what was your experience when you entered MBA in at IIM Lucknow? When I entered, I actually felt like hell. कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली तो 2 महीने पहले तो इंडक्शन होता है ना, और उसको हम बिल्कुल रैगिंग नहीं मानते। ठीक है ना। और ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसके अंदर, दैट इज कि आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडक्शन चल रहा है, सीनियर्स के साथ भी चल रहा है, उसके अलावा फिर असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं। और मेरी लास्ट डिग्री वाज इंजीनियरिंग। ठीक है, आप इंजीनियर से पूछो, इंजीनियर को अगर आप फॉर एग्जांपल, हमें तो अगर जूस भी मंगाना होता तो हम अपने दोस्त को बोलते थे कि भाई उधर ही जा रहा है ना, तो एक काम कर, एक जूस ले आना मेरे लिए। ठीक है, तो हम तो खुद खुद नहीं जाते थे उठ के जूस भी लाने के लिए। ठीक है, तो उस लेवल का आलस था। ठीक है, कि भाई नहीं, कुछ नहीं करना है खुद से।
उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट डिग्री थी वो IIM लखनऊ के अंदर। तो मेरा तो पहले 1 महीने में ही बैंड बज गया था। मैं घर पे कॉल करा मैंने एक बार, तो घर वालों ने बोला कि वापस आ जा। तो मैं बोला कि नहीं यार, अब कर लिया है, शुरू कर लिया है, ऐसे छोड़ के भागूंगा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खुद की नजर में इज्जत। ठीक है, तो आई फेल्ट कि नहीं नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो इनिशियल वाला पार्ट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। आई ऑल्सो फाउंड IIM लखनऊ अ बिट मोर रिगरस एकेडमिकली। ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता था कि यार एक ही असाइनमेंट में काम हो जाएगा, 2 असाइनमेंट क्यों दे रहे हो? ठीक है, एक एक पेपर है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल पहला असाइनमेंट, ठीक है, वैल्यूएशन है, दूसरा असाइनमेंट भी वैल्यूएशन है। अब इन दोनों से मैं एक ही चीज सीख रहा हूँ। ठीक, अच्छा पहले वाले में बीटा कैलकुलेट फॉर एग्जांपल कर लिया, एक और असाइनमेंट है उसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से वैक कैलकुलेट कर रहा हूँ, बीटा कर लिया तो वैक कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, मत दो। तो वो मल्टीपल चीजें आती रहती हैं और एकेडमिकली रिगरस हो जाता है उस दैट वे। So number of assignments for when I was in my second year, I did finance and marketing both. So I had 8 units on finance, I had 6 units in marketing, and a few operations and strategy courses. So effectively, I found the campus was a little too rigorous. Okay, maybe it was rigorous for me, but I found it very very good. मतलब initially when I started pushing myself, I felt that I was acclimatizing well. सबसे पहले तो जब तक आप अकेले रहते हो तो दिक्कत होती है, एंड जब दोस्त बन जाते हैं तो ठीक रहता है। सो इनिशियली फर्स्ट मंथ इज वेरी चैलेंजिंग, बट 1.5 मंथ समर इंटर्नशिप तक काफी चैलेंजिंग रहता है। ठीक है, एंड उसके बाद समर इंटर्नशिप आई रिमेम्बर कि रात को 12 बजे प्लेसकॉम के साथ मीटिंग होती थी, एंड पीकॉम रात को 12 बजे, मैं बोल सकता हूँ मैं तो कॉलेज में नहीं हूँ। ठीक है, तो रात को 12 बजे पीकॉम बोलता था कि भाई तुम्हारा रात में शॉर्टलिस्ट आ जाएगा। तो हमारा पोर्टल था जिसपे शॉर्टलिस्ट आता था कि रात को 3 बजे शॉर्टलिस्ट आएगा, अभी जाके सो जाओ। अरे ऐसी बात बताने के बाद कैसे सोएगा इंसान? ठीक, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई 3 बजे शॉर्टलिस्ट आएगा, बैठे हुए हैं ऐसे करके कि कितने शॉर्टलिस्ट आएंगे। ठीक है, बैठे हुए पोर्टल खोल कर रिफ्रेश 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 करने, 3 बज गए। अब सोचा कि पहले फॉर एग्जांपल देख लेते हैं फिर सोएंगे, और देखने के बाद कहाँ कोई सो पाता है? सी देयर इज अ रीजन व्हाई ह्यूमंस कांट सी फ्यूचर। ठीक है, नहीं मैनेज होगा, हो ही नहीं सकता है, यू कांट हैंडल। 3 बजे देख लिया, उसके बाद तो नींद ही नहीं आ रही। कई कई रीजन से नहीं आ रही कि ये इस कंपनी का क्यों नहीं आया, मेरे को क्यों नहीं आया, उसको क्यों आ गया। ठीक है, मैं तो ज्यादा अच्छा करता हूँ मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं दिमाग के अंदर, राइट? उसके बाद फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो, सो व्हेन आई ड्यूरिंग माय समर्स मेरा पहला इंटरव्यू हैपेंड अराउंड 5:30 6 o'clock। 5 ऑलमोस्ट 5 बजे हमें पहुंचना था, सो वी हैड टू रीच द प्लेसमेंट ऑफिस। 5 बजे हम प्लेसमेंट ऑफिस में थे, और पहला 6 बजे के आसपास, पहला 5:30 6 के आसपास पहला इंटरव्यू हुआ, एंड आखिरी इंटरव्यू ऑन दैट डे। सो आई हैड सम 22 23 शॉर्टलिस्ट, और जो आखिरी वाला हुआ था वो रात को 2 2:30 बजे हुआ था। आई रिमेम्बर दैट वाज आई थिंक नेस्ले और समथिंग। ठीक है, सो राउंड द क्लॉक हो रहा है, मैं सब कुछ भूल चुका हूं कि जेडी क्या है, कौन सी कंपनी में कौन सा जेडी था, कुछ याद नहीं है। ठीक है, महिंद्रा आई थी, महिंद्रा जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आती है। मैं वहां, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या मार्केटिंग करोगे? सर बोलेरो की मार्केटिंग करूंगा मैं। तो मैं बोला जेडी पढ़ा है, जेडी पढ़ के आया है? पर सर टाइम ही नहीं था जेडी पढ़ने का, सुबह सुबह आया हूं मैं, सोया नहीं हूं मैं रात भर से। ठीक है, और ये लगातार चल रहा है जब तक प्लेसमेंट आपका चल रहा है, तो प्रोसेस तो काफी ड्रेनिंग है। आई एम श्योर यू वुड अग्री अनुष्का। I just won't say anything. I'm still या here. यस यस, मे बी I'd ask you this a couple of years once you're outside the campus. Sure, sir, sure. Yeah. So yeah, वो तो चीज है. It's draining. It's very hard. Like when I came here, the first, at least till placements got over, it was the most hectic few. These were the most hectic few months that I've ever had in my entire life. But Absolutely. yes, उसके बाद it's not just me, but everybody who was with me in the process in the B school, they agreed that they came out as someone else. या और उसके बाद क्लासेस भी ऐसे लग रही थी, अरे कोई बात नहीं, सिर्फ 9 से रात करेक्ट के 8 बजे तक क्लासेस है, कुछ नहीं होता, इतना काम है, कुछ करेक्ट, नहीं होता. नहीं नहीं ठीक है. एब्सोल्युटली। तो मैं तो फॉर एग्जांपल जब बी स्कूल के पहले जब मैं जॉब में था ना, मैं काफी कंप्लेन करता था कि अरे यार 1 घंटा ज्यादा करना पड़ गया, आधा घंटा ज्यादा करना पड़ गया। 6:30 बजे कितना बढ़िया निकल रहे थे, 7 बजे मूवी का प्लान था। ठीक है, ये 7:30 तक बॉस मेरे को यही बैठा दिया। ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं बी स्कूल जाने के बाद में।
ठीक है। सो आई थिंक ये जो ड्रेनिंग वाला पीरियड है, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक एट बी स्कूल आई हैड अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज वहाँ पे और बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो आप करते हो. सो आई यूज टू डू म्यूजिक. आई वॉज द लीड वोकलिस्ट एट 3.4, which is the official music club at IIM Lucknow. So I was doing that. I was doing fitness drives. So we were doing, for example, a lot of acoustic sessions, jam sessions, case competitions. I had Excite Innovation Challenge. In fact, Excite के करियर पेज पे अभी भी हमारा फोटो आता है. ठीक है. So that's that. So a lot of interesting things. A lot of good learning, a lot of good friends. Our squad is called Titanic. We created the party group at IIM Lucknow. हमने कई पार्टीज अपने हमने स्पॉन्सर करी वहां पे. पर बहुत मजा आया. We created a good group. We had 458 people, and I knew almost everybody, and everybody knew me. Got it. So that Definitely. That's if somebody asked me if it was worth it to get into an MBA, I absolutely would say totally. totally It worth it. has been game changing for me. कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल. मतलब यू बिकम एब्सोल्युटली. एंड एक और इसके अंदर थिंग है जो विच आई वुड वॉइस आउट. जब आप बी स्कूल से बाहर आते हो ना, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ सुपर ह्यूमन. मतलब इट्स लाइक कि ना, आप फॉर एग्जांपल, आप यू आर देयर इन अ वेरी डिफरेंट यूनिवर्स, और आपको एकदम अलग ही यूनिवर्स में डाल दिया है जहाँ चीजें बहुत धीरे चल रही हैं. आपको आदत है बहुत तेज चलने की. ठीक है. तो बेसिकली एकदम समय धीरे हो चुका है. इट्स लाइक थियरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाइंग नाउ, के यू नो एकदम टाइम डायलेशन हो गया हर एक चीज में. फॉर एग्जांपल, चीजें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, है ना. मुझे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज देयर, माय एट एबीजी, मेरा पहला जो मुझे असाइनमेंट मिला था, somebody so my manager told me कि गिव इट टू मी इन 6 आवर्स. मैं बोला सर, ये तो 1 घंटे का काम है. ठीक है. बोला कि अच्छा 1 घंटे का है तो आधा घंटे में दे. मैं बोला कि तू तू एमबीए है ना, तू अपना बफर ऐड किया होगा, तो आधे घंटे में दे मेरे को. ठीक है. सो इट्स एंड यू स्टार्ट बेसिकली फीलिंग फॉर अदर्स ऑल्सो कि यार ये आधे घंटे का काम ये 6 घंटे में क्यों कर रहा है, या 4 घंटे में क्यों कर रहा है. इरिटेशन भी मचना शुरू होता है बाकी लोगों से. बट हाउ डू यू मेक पीस विथ इट, बिकॉज आपको काम उन्हीं के साथ करना है. ठीक है. तो हाउ डू यू मेक पीस विथ इट. हाउ डू यू स्टिल रिस्पेक्ट पीपल हु मे बी डिड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी, who maybe were not so lucky to actually go to a B school because of, ऐसा नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है, बट मे बी उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उस पॉइंट इन टाइम पे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट दोज पीपल एंड क्रिएट अ गुड ग्रुप टुगेदर. True, definitely, sir. So we have spent 45 minutes talking to people about CAT Yes. and MBA life. So basis that, I was thinking that maybe 5 minutes we can spend on the B school trivia, जो Sure. कि सिर्फ the B school insiders they know about it. Okay. तो थोड़ा सा, if you could tell me, like I have a list of things that I Sure, know. sure. It's been a little, it's been some time out for B school, so I'd request if we can have some easier questions. Sure, sure, sure. Go ahead. The first one you'll definitely know. It's Okay. about DCP. डीसीपी तो मैं अपने क्लासेस में बहुत बोलता हूँ लोगों को. डीसीपी इज कॉल्ड डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन. डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन ये होता है. सो आईएम्स के अंदर ना डीसीपी बहुत फेमस है. तो वहां पे क्या होता है ना कि कई बार सीपी के पॉइंट्स मिलते हैं आपको. तो हम बेसिकली एक्सपेक्टेड आपसे ये होता है कि आप केसेस पढ़ के जाओगे क्लास के अंदर, और आप सही पार्टिसिपेशन करोगे, सही क्वेश्चंस पूछोगे, वैल्यू ऐड करोगे अपने एक्सपीरियंसेस से, एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ लोग क्या करते हैं ना कि डीसीपी करने लगते हैं. देखिए, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है टॉपिक का, बस वो रैंडम ज्ञान दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पार्टीज में होता है ना, जब आप पार्टी में जाते हो और खाने के ढक्कन खुलने का वेट कर रहे हो, तो रैंडम कोई डिस्कशन कर रहे होते हो कि हाँ कांग्रेस ने तो बिल्कुल गलत किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना. बस वेट कर रहे हैं कि ढक्कन कब खुले, हम खाना खाएं, बस हमें और कुछ लेना देना नहीं है इस कॉन्वर्सेशन से. तो वैसा ही होता है डीसीपी. कोई तो रैंडम शिट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं. सो दैट इज डीसीपी. डेफिनेटली. एंड क्योंकि डीसीपी के परसेंटेज मार्क्स होते हैं आपके इवैल्यूएशन कंपोनेंट में, 10%, हाँ, ट्वेंटी सीपी परसेंट का होता है वो. डीसीपी का तो हाँ, ट्रू. But then people just say डीसीपी के the मार्क्स most. डीसीपी के मार्क्स कट जाते हैं. एसपी जैन में क्या बोलते हैं उसको, डीसीपी बोलते हैं. हर जगह डीसीपी बोलते हर हैं. जगह डीसीपी बोलते हैं. ठीक है. वन मोर थिंग दैट आई फाउंड आउट, इसका मुझे नहीं पता. इट्स कॉल्ड जेजेओसी एंड अपेरेंटली इट्स फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव. हाँ, जेजेओसी. सो बेसिकली ना, एमडीआई गुड़गांव के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. एमडीआई एमडीआई में ना देर इज अ पर्सन कॉल्ड झाजी. ठीक है. झाजी के पराठे बहुत फेमस है. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है ना कि
और झाजी इज लाइक द मोस्ट मिस्टीरियस मैन ऑन कैंपस। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता है। मतलब ही इज नॉट लाइक कि ना मेरे को धंधा करना है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरी मर्जी, मैं आऊंगा आऊंगा। मतलब वो अलग लेवल एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो कभी भी वो आएगा कभी भी जाएगा। तुम पता करो, अगर तुम्हें खाना है पराठा, अच्छे पराठे अगर तुम्हें खाने हैं, तो यू फाइंड इट आउट, आई डू नॉट गिव अ शिट कि तुमको पराठे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो लोग एक्चुअली उसका ट्रैक रखते हैं। तो जब वो कैंपस में आता है ना, तो सारे ग्रुप्स में मैसेज आता है जेजेओसी, झाजी ऑन कैंपस। और फिर लोग रश करते हैं और काफी भीड़ लगती है जब झाजी ऑन कैंपस होते हैं। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड Okay, जेजेओसी। very interesting. I didn't know about this. Yeah. So, that's some perk of, keeping it this all this interaction going. So I'm meeting you, Anushka. So I'm sure I'm going to know something about SP Jain. फिर किसी conversation में उस SP Jain के बारे में बता रहा हूँ मैं। Definitely, sir. एक और है which I found out, इसका भी मुझे नहीं पता. It's called भाग and बाटना, BATNA. Like, what does that mean? So Batna is like uh, best alternative to a negotiated argument. ठीक है, बांटना इज लाइक, मैं बताता हूँ बांटना में क्या होता है कि जैसे मान लो जीडी चल रहा है ना, जीडी में आर्ग्यूमेंट चल रहा है एंड आर्ग्यूमेंट इज टू अ डेड एंड नाउ। अब मतलब फॉर एग्जांपल तुम जो बोल रहे हो वही लॉजिकल है, सामने वाले जो बोल रहे हो वही लॉजिकल है, अब नाउ कहीं जा नहीं सकते। तो तुम क्या करते हो ना, रैंडम फैक्ट फेंक देते हो कि अब तो भाई तू गया। ये रैंडम फैक्ट मैंने दे दिया, नाउ आई विन। ठीक है, सो बांटना इज लाइक कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने ज्ञान बांट दिया, कोई एक ऐसी बात तुमने बता दी विच इफेक्टिवली हेल्प्स यू मूव ऑन फ्रॉम अ डिस्कशन। कि कोई एकदम रैंडम फैक्ट दे दिया। कई बार फॉर एग्जांपल होता है ना जीडी में, हम ऐसा शो ऑफ करने के लिए कोई एक फैक्ट बता देते हैं। ठीक है ना, कि इंडिया की जीडीपी है 334 लाख करोड़ से, इसका I कॉन्वर्सेशन से कुछ लेना देना नहीं भी हो सकता है। I think that's why they have started cutting marks for it in या actual GDs, या या because they have people, they are like they jump up with random. They या give marks पीपल, if you bring people back to the center of the argument. एक्चुअली पीपल डू अ लॉट ऑफ बांटना, अ लॉट ऑफ पीपल डू बांटना विदाउट नोइंग व्हाट बांटना इज। True, definitely. One more thing, sir. It's about what would be the B school version of "We will get back to you." Like this is something जो मैंने अब कहना शुरू कर दिया अपने दोस्तों को भी कि हाँ हाँ I'll look into this and get back to you pretty soon and then never get back to them. Like हाँ, never read their messages. see, we'll get back to you is, pretty HR-ish, with absolutely no disregard to all the HRs watching this, or all the people who aspire to become HRs. Uh, if हम तो for example let's say at our campus we would get back to you, हम नहीं बोलते थे, हम लोग ये बोलते कि भाई बहुत भसड़ मचा हुआ है। ठीक है, सो वी वुड लाइक बहुत भसड़ मचा हुआ है तो अभी तो कुछ मत पूछो, अभी अभी कुछ मत पूछो, कुछ मत बताओ। सो दैट इज हाउ वी एंड द कॉन्वर्सेशन। Definitely. And also हमारे यहाँ it's like कि यार नहीं आज तो बहुत काम है और कोई काम नहीं है. The काम is that you have to go back, scroll some reels, करेक्ट। sleep maybe, and there is no work whatsoever. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी, आज के दिन में रील्स देखना और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड, नो कौन सा मीम चल रहा है। आई वॉच अ लॉट ऑफ एनिमे। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड एंड ऑल्सो हेल्प्स यू, ठीक है, कनेक्ट विद द रेस्ट। अचानक से पता चला 2 दिन आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कुछ नहीं देखा, आप आउटडेटेड हो गए हो, यू आर नॉट रिसोर्सफुल एनीमोर। So I think there is some level of performance pressure also that way. Definitely, sir. Definitely. So bringing this entire live session to the end, so I would want you to give some parting notes to the audience over here, so that especially for the ones who are starting now with their preparation, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कुछ अच्छा I'd सा. say कि यार देखो, मतलब ऑनेस्टली फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ, एक चीज जो मैं कहूंगा आपको करना बहुत जरूरी है अगर आप कैट 25 में अच्छा करना चाहते हैं, एंड दैट इज स्टे अलाइव, जिंदा रहिए। तो एक चीज करो कि भाई, सबसे पहले एक सिंपल एलिमेंट का ध्यान दो कि अपना थोड़ा थोड़ा टाइम ब्लॉक करके पढ़ाई करना शुरू करो। इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट वे टू बिगिन विद, ट्रस्ट मी। जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैंने 1.5 महीने में कर दिया, 2 महीने में कर दिया। ठीक है, मैं पोल पे चढ़ के तैयारी करता था, स्ट्रीट लैंप के नीचे करता था। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, मेहनत लगती है।
ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो स्मार्ट वर्क, मे बी स्मार्ट हार्ड वर्क, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क से आपका काम हो जाएगा। दीज आर जस्ट बजवर्ड्स, रैंडम बजवर्ड्स के चक्कर में मत पड़िए। मेहनत का जो इंपॉर्टेंस है उसको भूलिए मत, एफर्ट मारिए, मेहनत करिए। इट इट नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। एंड तक फाइट मारिए, सारे एग्जाम्स दीजिए। आपका कैट एंड मैट जैट स्नैप जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, माई कैट, वो सारे एग्जाम्स आपको देने चाहिए। एंड अपनी तैयारी अच्छे से करिए, हर दिन अपनी तैयारी करिए। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, विद मी, विद अनुष्का, हैप्पी टू डू दैट। And make sure that we keep guiding you in the right way so that you are able to achieve your dreams. But I would say stay happy in the process. Remember, if you're not happy, then maybe this is not the right path for you. Definitely, sir. And like one more thing that you used to say that I had written down in my notes also, मैं बताती हूँ अपनी videos में कभी कभार, it's that you said that if you give up on this particular dream, then it means that it was not important for you. So Absolutely. if you really, really want it, like if you really see yourself doing an MBA at a good B school, then you cannot give up on this thing and just stay consistent and you'll really Yeah, get there. absolutely. In fact, I there is one more thing, Anushka, which I tell people is कि मान लो कि तुम ही भगवान है. Imagine that you are God and you have all the powers. The only constraint is that you are fair. Would you give yourself that top B school? तुम क्या अपने आप को B school दे दो? तो अगर दे सकते हो तो दे दो, बट पॉइंट वही है कि तुम्हें फेयर रहना पड़ेगा। यू आर पावरफुल, यू आर एब्सोल्युटली पावरफुल टू गिव योर सेल्फ द कॉलेज दैट यू वांट। ठीक है, थोड़े बहुत फॉर एग्जांपल प्रोफाइल वगैरह वाला फंसेगा, लेकिन कोई ना कोई अच्छा भी स्कूल मिल जाएगा। So if there is anybody who can give you that peaceful, it is you. You have the power to do it. So believe it. And magic tricks are magic tricks, but what happens every day with efforts are miracles. So you can, be the miracle. Definitely, sir. What a good parting note it is Thank you. that efforts are efforts. Put in all Absolutely. your hard work, put in all your, concentration, efforts, whatever dedication you have into this, and you will definitely make it and get a good score in the CAT 2025. Yeah, yeah. And we are all rooting for you. We are all there for you. Make sure that you make it count. God bless, guys. Thank you. Thank you, sir, for joining in and sharing Thank your you, insights Anushka, for with these having me. people. It was such a fun conversation connecting with you, after some time, but very, very lovely talking to you. Thank you, sir. Thank you for joining in. And thank you, everyone, for joining into this live session. I hope it was useful for you. And if you have any other doubts, any other questions, you can leave them in the comments. Me and Sudhanshu, sir, will try to get back to you. So, Thank you, thank everybody. you, Thank you, everyone. Anushka. Bye bye, sir. Bye.